رشتے میں ہم ایک ایسے بندے ہیں جس کو پتہ نہیں ہم کیا نام دیں کیا نام نہ دیں، مگر وہ ایک ایسا رشتہ ہے جو شاید ہماری آخری سانسوں تک، ہم سب کی آخری سانسوں تک جو ہے وہ قائم رہے گا۔ اپنی زندگی کی سروس میں یہ 2 سال جتنے شاندار اور پرسکون گزرے ہیں وہ شاید پہلے ہم نے نہیں گزارے، اور جتنا خوبصورت ماحول، جتنے بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں، ڈاکٹر لیاقت علی اور ذیشان تبسم صاحب، میرا خیال سب سے زیادہ ٹائم آپ نے، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میرے شاید الفاظ کم پڑ رہے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ میں نے میڈم کے ساتھ 5 برس کا ہمارا ایڈمن آفس اس کے بھی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باسف صاحب اتنے غصے میں کیوں بیٹھے؟ میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بول کیوں نہیں رہے ہیں؟ کوئی آن لائن تو ہے، آن لائن آ جائیں گے آپ۔ الوداعی تقریب یہاں پر ہو رہی ہے، باربیکیو ٹو نائٹ پہ بیٹھے ہیں کہ اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ ایسے ہم ہوتے تو رہتے ہیں اکٹھے، لیکن آج سرکاری سطح پہ آج آخری دن تھا تو سب جا رہی ہے ترانہ پراسرار گانا۔ میں سچی بتاؤں آپ کو کہ جیسے مائیں اپنی کامیابی سے بڑھ کے بچوں کی کامیابی پہ خوش ہوتی ہیں، تو وہی میری فیلنگز ہیں کہ آپ لوگ، میں اگر کوئی، انہوں نے کہا صدر شعبہ کی حیثیت سے میں ڈالا ہوگا دانت میں پھنس گیا کچھ، نہیں دانت میں پھنس گیا کچھ، کہیں کوئی ڈالا ہوگا۔ ایک بندے کو آپ جانے سے مجبور کر رہے تھے، سر نے تو پھر گناہ کے نہیں سنایا۔ آخری سے سر اپنا باسف صاحب اتنے غصے میں کیوں بیٹھے؟ میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بول کیوں نہیں رہے ہیں؟ کوئی آن لائن تو ہے، آن لائن آ جائیں گے آپ، کوئی نہ کوئی آ شروع جائے۔ کریں گے تو بہت سے آپ کی آواز سن کے آ جائیں گے۔ جی ناظرین، میڈم روبینہ رفیق صاحبہ، ان کے اعزاز میں ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، کھا چکے ہیں، بھوکے کھا چکے ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ خالی گرین ٹی پہ ٹکایا جا رہا ہے۔ ریلیکس نظر آ رہے ہیں، زیادہ حشاش بھی نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور گرین ٹی ظاہر ہے وہ ایک دور چل رہا ہے، جی جی، اور یہ کمپلیمنٹری کیونکہ دور تھا اس لیے زیادہ خوشی سے ساتھ پی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کافی کا ایک دور چلے گا۔ میڈم کے اعزاز میں دیکھیں اللہ میاں نے موسم بھی خوبصورت کر دیا ہے، کمال ہے، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ زبردست ہو گیا۔ سید عامر سہیل صاحب، جی 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 سر، میں آپ ہی کو لائیو دیکھ رہا ہوں، اچھا یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ لائیو ہیں، لائیو ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیں جی 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 حضور، اس پہ فیس بک پہ فیس بک پہ لائیو چل رہے ہیں۔ چلیں جناب۔ جی واصف صاحب، جی جناب، جی سر، یہ ہم جی، سب اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، میڈم کی الوداعی تقریب یہاں پر ہو رہی ہے، باربیکیو ٹو نائٹ پہ بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت موسم ہے، ذرا بابازی بلند۔ موسم میں نے کہا بہت پیارا ہے۔ جو میڈم نے بھی بتایا کہ کتنے ایک لوگ جب جاتے ہیں تو ہلکی پھلکی بارش ہوتی ہے، اب وہ جاتے کہاں سے ہیں وہ یہ نہیں پتا کریں گے، میری بھی دنیا تھی جس سے میں جا رہی ہوں۔ میڈم سے تو آخر میں ہم بات کریں گے۔ جی مظہر صاحب، جی مظہر صاحب، بات تو وہی ہے کہ اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ ایسے ہم ہوتے تو رہتے ہیں اکٹھے، لیکن آج خاص وجہ یہ ہے کہ آج ہم میڈم کے اعزاز میں، میڈم نے 36 سال سرو کیا ایک ادارے میں، ایک استاد نے 36 سال نئی نسل کی آبیاری کی، اور آج ہم ان کا شایان شان تو نہیں ہو سکتا، اور وہ ہم نے بعد میں کرنا ہے آفیشیل فنکشن، لیکن آج ہم ان کے ساتھ یہ سارا دن ان کے ساتھ ہم گزاریں گے۔ تو لو یو میڈم، اور
جی باجوہ صاحب آج ہم ربینہ رفیق کے ساتھ میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور موسم بھی بہت اچھا ہے. کھانا ہم نے کھا لیا ہے اور اب مزید کیا کیا کھایا ہے کھانے میں؟ کھانے میں بوفے سسٹم تھا. کیا کیا نہیں کھایا سب کچھ ہی بوفے سسٹم تھا تو سب کچھ ہی چیک کیا ہے. کھانا اچھا تھا اور آخر میں ہم نے ابھی گرین ٹی بھی پی ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہے. اس اعتبار سے گرین ٹی نے کافی اچھا ہمیں ایک ٹیسٹ دیا ہے. بہت شکریہ. جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ ان کے لیے پھر کہ میڈم ربینہ رفیق صاحبہ جنہوں نے 36 سال شعبہ اردو میں گزارے ہیں، آج ان کا سرکاری سطح پہ آج آخری دن تھا، تو سب دوست ان کے اعزاز میں اکٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جناب طاہر عباس صاحب، ڈاکٹر طاہر عباس منٹو. بس میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو ہے نا وہ اس موقع پہ کیا کہا جائے. جی جی. موسم اگرچہ اچھا ہے لیکن دل اداس ہے اور یقیناً ظاہر ہے کہ یہ میڈم کے لیے بھی خوشی کا موقع بھی ہے اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ اتنا عرصہ جب انسان کسی جگہ سرو کرتا ہے تو ایک احساس جدائی بہرحال انہیں بھی ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ چکر یوں ہی جاویداں چل رہا ہے، کنواں چل رہا ہے، اگر کھیت سوکھے پڑے ہیں نہ فصل نہ خرمن نہ دانا، ادھر دھیرے دھیرے کنویں کی نفیری سنائے چلی جا رہی ہے ترانہ پراسرار گانا. تو ظاہر ہے کہ بس ٹھیک ہے، بس بھی ہو گیا بس. جناب عامر صاحب. جی جی جناب. عامر صاحب سوچ ملے جلے ہاں ہاں کیفیات. جی جی. یعنی ایک طرف اچھا بھی اس لیے کہ ایک طویل عرصہ میڈم نے سروس کا بہت کامیابی سے نہ صرف گزارا بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے طالب علم بھی پروڈیوس کیے ہیں کہ جو زندگی کے مختلف شعبوں میں، زندگی کے مختلف حیات کے مختلف شعبوں میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. اور ایک استاد کے لیے خاص طور پہ میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو کسی ایسی جگہ پر بٹھا کے جاتا ہے جہاں سے وہ خود آگے فیض رساں جو ہے وہ ہو جاتے ہیں دوسروں کے لیے. یہ بڑی کمال کی بات ہے. مگر صاحب ہے کہ ہم سب دوستوں کے لیے جو کہ ہم تقریباً میڈم کے ساتھ میں نے کوئی 2 سال کا وقت گزارا ہے، جس میں کچھ عرصہ اگرچہ کرونا کی نظر ہوا ہے، تو میری سروس کی اپنی زندگی کی سروس میں یہ 2 سال جتنے شاندار اور پرسکون گزرے ہیں وہ شاید پہلے ہم نے نہیں گزارے. اور جتنا خوبصورت ماحول ان 2 برسوں میں یہاں مجھے ملا ہے اور ہم سب دوستوں کو ملا ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ ایک بہت آئیڈیل ایٹماسفیئر ہوتا ہے کام کرنے کے لیے، کہ جہاں پہ آپ فری اینڈ فیئر ہو کے اور بالکل ہر قسم کی دباؤ سے پاک ہو کر جب کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اب میڈم جا رہی ہیں، صاف ظاہر ہے کہ ہمارے دلوں سے تو کبھی بھی نہیں جا سکتی، وہ ہمارے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ، آگے بھی رہیں گی. تاہم ایک سنگ میل جو ہے جو عبور کرنا ہوتا ہے، ہم سب نے کرنا ہے ایک وقت میں آ کے، وہ میڈم نے کامیابی سے عبور کیا ہے. اور کسی بھی ایک شخص کی زندگی کا یہ ایک میرا خیال میں بہت اداس مگر گولڈن ٹائم ہوتا ہے کہ جب وہ سفل ہوتا ہے اپنی پوری اس ریاضت سے جو آپ نے اس نے اپنی پوری زندگی میں وہ ریاضت جو ہے وہ کی ہوتی ہے. مگر ہم سب دوست جو یہاں بیٹھے ہیں جو میڈم کے ساتھ جنہوں نے کام کیا، صرف بطور کلیگ ہی کام نہیں کیا، بطور ایک ہم بھائی کے بھی ان کے ساتھ رہے ہیں. ہم ایک ایسے رشتے میں ہم ایک ایسے بندے ہیں جس کو پتہ نہیں ہم کیا نام دیں کیا نام نہ دیں، مگر وہ ایک ایسا رشتہ ہے جو شاید ہماری آخری سانسوں تک، ہم سب کی آخری سانسوں تک جو ہے وہ قائم رہے گا. اور ہم کوشش کریں گے ہم میڈم کو اپنے ساتھ میکسیمم ٹائم اپنے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہم جتنے بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں، ڈاکٹر لیاقت علی اور ذیشان تبسم صاحب، میرا خیال سب سے زیادہ ٹائم آپ نے میڈم کے ساتھ گزارا ہے. تو پہلے
डॉक्टर लियाकत अली के तासुरात जो हैं। ज़ाहिर है कि मैडम के अगर मैं कहता हूँ कि 36 बरस की अगर सर्विस है तो 17 बरस तो हमने इकट्ठे गुजारे हैं, और 17 बरस का अरसा जो होता है वो मेरे ख्याल में एक काफ़ी अरसा होता है, ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। और हमारे लिए ज़ाहिर है कि सबके कमो बेश जो महसूसात हैं, अगरचे उसमें किसी ने अगर 2 साल भी गुजारे हैं या मैम ने 17 बरस भी उनके साथ गुजारे हैं, तो महसूसात में एक इश्तराक जो है वो मौजूद है कि उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़त, उनकी एक बर्दाश्त, एक मैं समझता हूँ मेरे लिए तो वो एक शेल्टर का एक काम भी जो है वो उनका एक वो करती रहीं। एक वो वक्त भी, एक मुश्किल वक्त भी जो मुख्तलिफ सदूर शोबा के द्वार ऐसे भी आए कि कुछ मुश्किल वक्त भी थे, तो हमारे पास जो एक कमरा, एक महफूज पनाहगाह था, तो वो मैडम का कमरा ही था कि हम चले जाते थे, अगर छुट्टी भी लेनी होती थी तो उनके तवस्सुस से ले आते थे, और कुछ गलती भी हो जाती थी तो वो भी वो दुरुस्त कर देती थी। बतौर मेरे साथ एक वो इंचार्ज एग्जामिनेशन रही और मैं उनके साथ काम करता रहा, फिर ये चीज़ें शिफ्ट हो गई, अब इंचार्ज मैं बन गया एग्जामिनेशन का, वो चेयरपर्सन बन गई, तो एक कोऑर्डिनेशन जो है वो मुसलसल रहा। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मैं, ज़िशान साहब और मैडम 3 लोग इस शोबे में थे, और चौथे ये हमारे साथ आए गुलाम असगर साहब, ये बतौर स्कॉलर हमारे साथ थे जो एक पार्ट टाइम की हैसियत से पढ़ा रहे थे। तो हमने मिल के एक शोबे को कोशिश की कि उसे आगे चला सकें और उसे किसी एक रास्ते पर लगा सकें। फिर एक काफ़िला जो है वो आता गया दोस्तों का, और इस वक्त मेरे लिए तो बड़ी खुशी के लम्हात हैं। मैडम अगरचे जा रही हैं लेकिन अपने पीछे एक ऐसा असासा छोड़े जा रही हैं, एक ऐसे दोस्तों को, ऐसे कुलीग्स का एक जो है असासा छोड़े जा रही हैं कि जो मेरे ख़्याल में कि आने वाले वक्त में इस शोबे को बहुत आगे लेकर जाएगा। तो बहुत उनके लिए मोहब्बतें, बहुत उनके लिए दुआएं हमारे साथ हैं, जैसे आमिर ने कहा, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जनाब डॉक्टर असगर साहब मौजूद हैं। अच्छा जी जी जनाब। वो अच्छा ये बात नहीं है, लेकिन बात ये है, बहुत सी बातें हैं जो करनी है। वो तशाबिल अतराफ़ का एक हिस्सा है कि जहाँ पे इंसान जब पहुँचता है कि वो आगे देखता है, तो वो आगे भी जाना होता है, उसके बाद पीछे मुड़ के देख रहा होता है, उस चीज़ से जुदाई वो नहीं कर पाता कि वक्त रुखसत पीछे मुड़ कर देखता था, बार बार जाने पर मजबूर था, वो रुकता रुकता रह गया। तो ज़ाहिर है ये इर्तिका का हिस्सा है, और हमेशा पूरी जो एक इंसानी वो जो है समझ लीजिए हयात का एक सिलसिला है कि हम कह सकते हैं कि हर नस्ल एक फसल है धरती की, वाह, एक उगती है, एक कटती है। जीवन वो महंगी मदरा है जो कतरा कतरा बढ़ती है। वाह वाह। तो ये इर्तिका का हिस्सा है। अच्छा, और ज़ाहिर है हमारी एक चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि वो चीज़ें मुसलसल रहें, उसको हम वक्त को ठहराना चाहते हैं, लेकिन वक्त ज़ाहिर है वो चलता रहता है, तो वो हमारी ख्वाहिशात अलग। लेकिन ये भी खुशकिस्मती होती है कि इंसान को खुदा इतनी वो पहली चीज़ तो ये होती है कि आपको एक उस मनसब पे पहुँचाए कि आप उस्ताद बन जाएँ, और दूसरी बात कि एक अच्छे उस्ताद हों। फिर ये कि आप अपना वो जो एक नेचुरल वक्त है वो भी पूरा करें। तो ये बहुत सी ऐसी खुशबख्ती भी होती है इसमें, बहुत से आप खुदा के ज़ाहिर बहुत सी इनामात हैं मैडम के ऊपर, जिनमें से उनका अच्छा होना, उनका इखलाक होना, वो और चीज़ें हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा इनाम जो है कि वो इस मंजिल तक भी पहुँची। और दुआ है कि हमेशा वो खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं, और एक बार फिर मैं आपको ये बता दूं कि आज मैडम का ऑफिशियली डिपार्टमेंट में आखिरी दिन था, लेकिन वो हमारे साथ ही रहेंगे। और अब आप पीएचडी में एडमिशन लो। पीएचडी में एडमिशन ले लें नए सिरे से। ये बताओ मेरा सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर आप खुद। जी ज़ीशान साहब, ज़ीशान तबस्सुम साहब, इन्होंने भी मैडम के साथ एक लंबा अरसा तकरीबन कोई 16 बरस आपने इकट्ठे गुजारे हैं। सजाद साहब बहुत शुक्रिया। जी जी। तो अभी लियाकत साहब ने बताया कि मैडम से जो उनका यहाँ पे ताल्लुक़ रहा है वो तकरीबन
17 साल पर मुश्तमिल है। तो इस लिहाज से मैं थोड़ा सा ज़्यादा खुशकिस्मत वाक़ई हुआ हूँ कि मेरा मैडम से ताल्लुक़ जो है इससे भी पुराना है और वो तकरीबन 21 साल पर मुश्तमिल है। जी जी। और मैं इस लिहाज से भी थोड़ा सा ज़्यादा ख़ुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये जो ताल्लुक़ है तो इसके मुख्तलिफ़ हवाले बनते हैं। एक तो मैं मैडम का बाकायदा शागिर्द रहा हूँ। MA के ज़माने में मैडम हमारी उस्ताद थीं और मैंने इनसे 2 पर्चे पढ़े हैं और मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि पढ़ाया किस तरह से जाता है। तो ये हमेशा जब से मैं उस्ताद हूँ तो मेरे जहन में इनका एक नक्श रहा है और हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हम भी उतनी तफसील से अपने तलबा को चीज़ें बता सकें जितनी तफसील से तो वो मैडम हमें पढ़ाया करती थी। तो मैं बतौर बाकायदा एक शागिर्द के भी एक दावा रखता हूँ और फ़ख्र करता हूँ। इसके बाद अब भी ज़ाहिर है शागिर्द तो हमेशा शागिर्द रहता है। फिर उसके बाद यह है कि मैं मैडम के साथ एक जूनियर कोलीग के तौर पे भी बड़ा वक्त हमने गुजारा है। और फिर ये भी है कि पिछले कुछ सालों से जब से मैडम सदर शोबा हैं तो मैंने इनके साथ एक मातहत उस्ताद के तौर पे भी काम किया है। और मैं समझता हूँ कि हर सतह पे ही मैं इन्हें बतौर उस्ताद जब देखता हूँ और बतौर रफ़ीक़ कार देखता हूँ और फिर बतौर सदर शोबा, तो हर जगह ही मैडम जो है वो हर लिहाज से एक बेहतरीन शख्सियत के तौर पे सामने आती हैं। और अभी जैसे लियाकत साहब ने फरमाया है कि एक ज़माना ऐसा भी था कि मैडम का ऑफ़िस हमारे लिए पनाह का एक शेल्टर बन जाया करता था। लेकिन मजमूई तौर पे मैं समझता हूँ कि मैडम ने हमेशा गैर महसूस तौर पे, कम अज़ कम मैं अपनी ज़ात की हद तक ये कह सकता हूँ और बाकी सब कोलीग भी इससे इत्तफ़ाक़ करेंगे कि गैर महसूस अंदाज़ में उन्होंने हमेशा हमें फ़ेवर देने की कोशिश की है, बल्कि दी है फ़ेवर। और हत्ता कि ऐसा भी होता है कि बाज़ जगहों पे जहाँ हमारा इस्तेकाक नहीं भी होता वहाँ भी एहसास दिलाए बग़ैर आउट ऑफ द वे जाके तो हमें फ़ेवर देती रही हैं। फिर मैं सच्ची बात है कि ये मैंने 3 अदवार मैडम के बताए हैं जहाँ मैं बतौर शागिर्द इनके साथ रहा, फिर मातहत कोलीग रफ़ीक़ कार की हैसियत से। लेकिन इनका सबसे आइडियल दौर इनके सदर शोबा बनने के बाद का दौर है। तो वो कहते हैं ना कि किसी इंसान को अगर जानना हो तो फिर उसे को मनसब दे के देखा जाए। तो मैं यानी पूरे एतमाद और यकीन से और बिला मुबालगा ये कह सकता हूँ कि सदर शोबा की हैसियत से जो इनका दौर था, ये मेरा ख्याल है शायद इनके पूरे करियर में भी शायद इतना शानदार ज़माना ये नहीं मेरा ख्याल है याद कर पाएंगी जो इनका गुज़रा होगा। तो और उसमें यानी वाक़ियतन अभी वो कुछ देर पहले दुरुस्त फरमा रही थी कि जी मैं कभी सदर शोबा बनी हूँ, तो मज़हर साहब कह रहे थे लेकिन कुर्सी तो आपके पास थी। तो ये दोनों हैसियतें ज़ाहिर है कि मैडम के पास मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी को, बल्कि मैं सबसे ज़्यादा उस बाज़ औक़ात में तवक्को करता था कि अब यहाँ मैडम कोई थोड़ा सा सदर शोबा बल्कि हमें तो इनसे गिला रहा कि सदर शोबा जहाँ बनना भी चाहिए था, तो इन्होंने आम तौर पे एतराज़ किया वहाँ पे भी। और मैं उस वक्त बड़ा एंजॉय करता था कि ये किसी से कभी नाराज़ भी होती थी और वजह तौर पे नाराज़ होती थी, लेकिन ये किसी को बराह रास्त जो है वो कोई सख्त बात भी नहीं कर सकती। वो कभी कभी करती भी थी, हो सकता है, लेकिन मेरी निगाह से ये चीज़ें कभी गुजरी हैं। वो सिर्फ उसके सामने कर देती होंगी, बल्कि होता ये था कि वो अगर गिला उन्हें मुझसे है तो वो कहीं किसी दूसरे शख्स से जो है वो उसका इजहार करती थी। तो बराह रास्त आम तौर पे मैंने देखा कि ये लोगों की इज़्ज़त नफ्स का बड़ा ख्याल रखा, सबकी ही इज़्ज़त नफ्स का, और बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से। हकीकत ये है कि एहसास ही नहीं होने दिया कि यानी ये इतना खूबसूरत अरसा ये किस तरह से गुज़र गया। तो बहरहाल मैं अब ये आमिर सुहेल साहब भी अब ये माशाल्लाह, मैं ये नहीं कि मैं इन्हें कोई सुना रहा हूँ ये बातें
लेकिन तो हम इनसे भी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये भी अब ये ज़िम्मेदारियां अब संभाल रही हैं। तो इंशाल्लाह मैडम ने एक रिवायत कायम की है। पिछले कुछ अरसे में कुछ चीज़ें जो नहीं हो पाई थी हमारे यहाँ, जैसे हमारा रिसर्च जर्नल जो है ये बड़ा एक अहम ज़रूरत थी शोबे की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इसमें डॉक्टर असगर ने भी बड़ा इनके साथ ताउन किया है। आमिर सुहेल साहब भी उसका हिस्सा बने हैं, बाकी भी शोबा जहाँ कहाँ हो सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके 4 शुमारे मुकम्मल हो गए और अब वो इंशाल्लाह HEC को ये फ़ाइल भेज दी जाएगी मंजूरी के लिए। उसके बाद फिर ये कि हम देखते हैं कि आमिर साहब जब से तशरीफ़ लाए हैं तो फिर मैडम को एक बड़ा सहारा मिल गया इनकी शक्ल में। तो हमने ऊपर तले कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई, उसमें ऑनलाइन भी थी। अभी हमने फैज़त भी मेला और इनफरादी तोसी लेक्चर्स वगैरह का एक सिलसिला भी जो है वो शुरू हो गया है। अब इंशाअल्लाह ताला किताबों की इशाअत का एक सिलसिला वो भी हमारे यहाँ शुरू होने जा रहा है। और अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि मैडम का अपना जो एक तहकीकी मकाला था वो गालिबन मुरतब हो गया और छप गया है, वो आजकल में आ जाएगा। तो मतलब शोबे में एक नई एक रिवायात आई हैं और एक जान पैदा हुई है। बहरहाल हम बड़ी खुशी भी महसूस हो रही है कि चलें इतने शानदार अल्फाज हम और जज्बात हम सब रखते हैं मैडम के बारे में और बड़े अच्छे अंदाज में अब मैडम शोबे से रुखसत हो रही हैं बड़ी मोहब्बत के साथ, और इंशाल्लाह ये मोहब्बत कायम रहेगी। तो वो ये तो एक ज़ाहिर है कि इदारे की कुछ तकाज़े होते हैं, बाकी मैडम शोबे का हिस्सा थी और इनकी बुनियाद गुजारों में से हैं। ये शोबे की जो भी बुनियाद है और इसका मिजाज है, इसकी रिवायात हैं, वो उसमें मैडम का बड़ा हिस्सा है। और इंशाअल्लाह ताला मैडम हमारे शोबे का हिस्सा ही रहेंगे और इनकी खिदमात और इनकी रहनुमाई हमें इंशाअल्लाह मुयस्सर रहेगी। बहुत शुक्रिया। ये थे ज़ीशान तबस्सुम साहब जो मैडम को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मैडम ज़ाहदा बाबर साहबा, तो उनसे भी मैडम के हवाले से उनके जी मैडम। मैं समझती हूँ कि इतने सारे लोगों ने माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से मैडम के साथ जो है अपनी मोहब्बत का, अपनी उल्फत का, अपने प्यार का इजहार किया। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मेरे शायद अल्फाज कम पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि मैंने मैडम के साथ 5 बरस का जो है अरसा मेरा मैडम के साथ गुज़रा और पहले दिन से ही पता नहीं उनकी शख्सियत में कुछ ऐसी कशिश थी या क्या था, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं पहली दफ़ा उनसे मिल रही हूँ। वो ऐसे हम आपस में घुल मिल गए और जो भी 5 साल का अरसा मैंने उनके साथ गुजारा, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। उनको एक आइडियल उस्ताद के रूप में देखा, एक शफीक हस्ती, एक बेहतरीन दोस्त। अगर मैं आज सोचूं कि कौन सा रूप मुझे उनसे ज़्यादा मैं समझूँ कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी शख्सियत का, तो मेरे लिए भी फ़ैसला करना मुश्किल है। मैं देखती हूँ कि मुझे खुद ज़ाती तौर पर कभी एक दोस्त की ज़रूरत पड़ी तो वो मुझे एक दोस्त के रूप में नज़र आई, एक बहन की ज़रूरत पड़ी तो मुझे एक बहुत मोहब्बत करने वाली बहन नज़र आई। हत्ता कि जहाँ कहीं मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे एक माँ का मशवरा, एक उनकी जो है वो चाहिए, तो मुझे वो भी उनकी शख्सियत में वो मिली। और आज मिले जुली जो है वो कैफियत है। मौसम भी कुछ ऐसे लग रहा है कि वो हमारे ही जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है। कहते हैं कि दिल तो अपना उदास है ना सिर्फ ये शहर भी साइंसदान कर रहा है। तो बादल भी बरसे और यही हम ज़ाहिर मैडम के सामने नहीं अपने जज्बात का इजहार कर पा रहे, लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि उनके जाने से एक खलासा है जो यकीनन आमिर सुहेल साहब की सूरत में पूर हो जाएगा। लेकिन हर इंसान की एक अपनी ज़ात की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, वो रहेगी। और वो आज सरकारी सतह पर ऑफिशियली उनका आखिरी दिन है, वो जा रही हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ हम में रहेंगी। हम कभी भी उन्हें अलविदा नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया। ये थी मैडम ज़ाहदा बाबर जो मैडम के लिए, मैडम रुबीना रफ़ीक के लिए खराज तहसीन पेश कर रही थी।
اب ہمارے ساتھ ایک اور ہماری رفیق کار حفصہ ثانیہ. تو جی آپ میڈم کے لیے. جی بس میں زیادہ تو میرے پاس میں نے وقت بھی نہیں ان کے ساتھ گزارا، لیکن میرے پاس لفظ بھی اتنے نہیں ہیں. میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ایک ایسے پیڑ کے نیچے کیا، ایک ایسے پیڑ کے نیچے کیا جس میں نہ مجھے تعصب کی چھاؤں ملی، نہ انا کی بھیڑ تھی، بلکہ ایک ماں اور دوست کا سا سلوک مجھے ملتا رہا ان سے. ماں جیسی محبت، جیسے لگتا تھا میں کسی اور میں کہیں اور جاب نہیں کر رہی، کسی آفیسر کے نیچے نہیں، بلکہ ایک ماں کے سائے تلے میں اپنا کام کر رہی ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ ہمارا ایڈمن آفس، اس کے بھی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب رانا ندیم صاحب ہیں. جی رانا صاحب، آپ نے بھی میڈم کے ساتھ اپنا ایک وقت گزارا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ ہم نے میڈم کو ایز اے چیئرپرسن بہت اچھا محسوس کیا اور ان کی کمی ہمیشہ محسوس ہوگی. اچھا. یہ حافظ اپنا رشید صاحب. حافظ صاحب آپ نے سچ جی بولنا، بہت اچھی بات ہے. تو آپ سرائکی میں بھی بات کر سکتے ہیں. میڈم بہت اچھی تھی. سرائکی چاپو نا، سرائکی چاکو جگہ میں میڈم بہت اچھی ہے سر. اچھا اچھی ہے کیا؟ اچھی ہے، بہت اچھی ہے. اچھا واہ. 12 سال زندگی وقت گزارے، 12 سال 12 سال گزرے ہیں 12 آپ کے. سال بہت اچھی. جی فوراً طور غصے ہو جاتے تھے. اچھا. اتنی اچھی تھی، سمجھاتی تھی. اچھا. تکلیف ہے. تو کیا آپ ان کے جانے پہ کیا کہیں گے؟ وہ آج آخری دن تھا ان کا. بس سر کیا کہہ سکتے ہیں، ابھی تو دل نہیں کر رہا میڈم سے ہوتی ہے. اچھا. یہ بات ہے سر. بہت شکریہ. جی ہمارے ایڈمن آفس سے جناب زاہد صاحب موجود ہیں. جی جناب. میڈم کو میں نے ہمیشہ پولائٹ پایا. میں نے اب تک 2 مختلف شعبہ جات میں کام کیا ہے، لیکن میں نے شعبہ اردو جیسا شعبہ جس کی صدر میڈم رہی ہیں، آج آفیشیلی ریٹائر ہونے جا رہی ہیں، تو میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی میڈم نے ہمارے اوپر شاؤٹ کیا ہو، کوئی پریشر ڈالا ہو، کوئی دباؤ ڈالا ہو کہ آپ نے یہ نہیں کیا، جس طرح سے آفیسرز کرتے ہیں. لیکن میڈم نے ہمیشہ ہمارے ساتھ ایز اے ماں کے طور پہ، اور میں انہیں مانتا بھی ہوں، یہ میری روحانی ماں ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کبھی غلطی ہوئی بھی ہے تو بڑے پیار سے سمجھایا جیسے مائیں سمجھاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اور ابھی بھی چند دن پہلے بھی انہوں نے مجھے کہا، کچھ نصیحتیں کی، تو میں سمجھتا ہوں میں نے شعبہ اردو میں آ کے اپنے اندر بھی کچھ نہ کچھ پولائٹنیس فیل کی ہے جو کہ میرے اندر پہلے نہیں تھی. سو میں نے کافی سیکھا ہے، اور الحمدللہ یہاں پہ ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ ہمارے اساتذہ کا آپس میں اساتذہ تمام آپس میں یکجان ہیں، سب کی بات ایک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کسی کی کوئی مخالفت تک نہیں ہوتی. تو خیر میرے بس اتنا ہی. چلیں بہت شکریہ. اور یہ ایک اور نوجوان ہے ہمارے ایڈمن میں، شہزاد. جی شہزاد. مجھے ایسی فیل ہو رہی ہے کیونکہ آج سے تقریباً میں 1 سال پہلے اس شعبے کو جوائن کیا تھا. میں بیسیکلی تو مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن ادب کے شعبے میں آ کے ادب کے لوگوں کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور وہ سب چیزیں جو ایز اے ہم مینجمنٹ میں دیکھتے ہیں، کیسے اپنے لوور اسٹاف کے ساتھ بیہیو ہونا چاہیے یا اپنے کولیگس کے ساتھ بیہیو ہونا چاہیے، میں نے ایکچولی اسے پریکٹیکل لائف میں اس شعبے میں دیکھا ہے. اور میڈم ہمیشہ مجھے ایک ماں کے طور پہ پیار کیا ہے، اور کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اگنور کیا اور مجھے سکھایا. اور میڈم کے لیے ہمیشہ دعائیں اور ہمیشہ مجھے یاد رہیں. بہت شکریہ. ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو سب نے دیکھیں کہ اپنے اپنے طور پر میڈم کے لیے خراج تحسین پیش کیا ہے. ان کے شاگرد بھی یہاں پہ موجود ہیں اور اساتذہ بھی موجود ہیں جنہوں نے میڈم کے ساتھ کام کیا. اور ایک لفظ میں اگر میں کہوں کہ سب کی جو ایک متفقہ ایک تصور ہے، خیال ہے میڈم کے حوالے سے، تو وہ ایک ماں کا تصور ابھرتا ہے. تو آخر میں ہم میڈم سے بھی ایک بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے جی میڈم
माओ से सवाल पूछते हैं। बाद आज सब लोग आपके लिए इकट्ठे हुए और मैंने जानबूझ के इनके सब के लफ्ज़ नहीं सुने, क्योंकि मैं फितरतन एक जज्बाती खातून हूँ, तो इनकी बातें सुन के मैं मज़ीद जज्बाती हो जाती। तो ये मौका ऐसा नहीं है कि जहाँ मैं जज्बाती होते होते जज्बातियत का शिकार हो। मैं इस वक्त सचमुच शुक्रगुजारी के एहसासात से कहीं कि लबरेज़ हूँ, भरी हुई हूँ, कि मैं अगर मुड़ कर अपने पूरे कैरियर पर नज़र डालूँ तो मैं एक एतबार से बड़ी खुश नसीब रही हूँ कि जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मेरी रहनुमाई भी की, मेरा ख्याल भी रखा, हत्ता कि मेरे लाड भी उठा। और उन्हीं में से मुझे एक ऐसी दोस्त भी मिली, मैडम अकीला, के जिनके बारे में मैं एक जुमला कहती हूँ कि मैं अपने तमाम दोस्तों की दोस्त हूँ। मेरी दोस्त डॉक्टर अकीला। तो फिर उनके बाद एक ज़माना ऐसा आया कि सीनियर्स भी मौजूद थे और जूनियर्स आए, जिनमें लियाकत, ज़ीशान, डॉक्टर आसिफ थे। और उस वक्त मैं मजाक में कहा करती थी कि मैं 3 में हूँ ना 13 में, मैं दरमियान में थी। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से मुझसे मोहब्बत की, फिर आप सब लोग आए, आमिर, सजाद, ताहिर, असगर, मजहर, वासिफ साहब और बाकी डिपार्टमेंट में जितने ऑफिस में भी जितने मेरे रफ़क़ाए-कार रहे, सबकी हवाले से असल में थोड़ा सा जो मुझे फ़ील हो रहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने जानबूझकर नहीं सोचा शऊरी तौर पर, इसलिए कि जितना तवील अरसा इस शोबे में रही हूँ मुझे अपना घर लगता है। तो आप सब लोग भी अब जबकि मैं सबसे उम्र में बड़ी हूँ, तो आपने कहा कि मेरे अंदर वो ममता वाले जज्बात खुद ब खुद आते हैं। और मैं सच्ची बताऊँ आपको कि जैसे माएँ अपनी कामयाबी से बढ़ के बच्चों की कामयाबी पे खुश होती हैं, तो वही मेरी फीलिंग्स हैं कि आप लोग, मैं अगर कोई, इन्होंने कहा सदर शोबा की हैसियत से, मैंने कभी अपने आप को उस तरह, मेरे अंदर फीलिंग्स ही नहीं आई कि मैं सदर शोबा हूँ। मुझे बस ये लगता था कि ये सब मेरे छोटी बहन भाई हैं और मैं इनसे बड़ी हूँ, तो मुझे इनका ख्याल भी रखना है, इनको डांट डपट भी करनी है, इनसे नाराज़ भी होना है, इनसे मोहब्बत भी करनी है। लेकिन जवाब में जितनी मोहब्बतें, जितनी इज़्ज़त इन आप सब की तरफ से मुझे मिली। और अगर कोई ये कहे कि 2-4 काम मुझसे हुए, तो वो मुझसे नहीं हुए, ये टीम वर्क। अगर आप लोग मेरा साथ ना देते सब, तो जो कुछ हमने पिछले चंद वर्षों में किया है वो नहीं हो पाता। ज़ीशान और लियाकत, जैसे अभी इन्होंने बताया कि एक वक्त था कि हम सिर्फ 3 लोग थे, तो इन दोनों के साथ मेरा रिश्ता वही है। ज़ीशान मेरा स्टूडेंट भी है, फिर कुलीग भी। लियाकत के साथ एक और तरह का है कि लियाकत मेरी दोस्त का छोटा भाई भी है, तो मुझे अपने छोटे भाई की तरह लगा। और फिर आप लोग भी जब आए तो खुद ब खुद आप लोगों के साथ एक ऐसा रिश्ता डेवलप हुआ, जैसे आमिर ने कहा कि ये शायद मेरी आखिरी सांसों तक रहे। मैं शोबे से फ़िज़िकली शायद जा रही हूँ, लेकिन जब आप किसी जगह से लोगों से, जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं, जिस जगह से मोहब्बत करते हैं, आपके वजूद का कुछ हिस्सा वहाँ रह जाता है। तो मेरे वजूद का भी बहुत सारा हिस्सा ही मौजूद रहेगा, और आप सबको मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। तो जब मैं अपने घर में बैठूँगी तो आप सब मेरे इर्द गिर्द हमेशा मौजूद रहेंगे। अपनी खुसूसियात से आमिर छोटा हो के बड़ा बन जाता है, लियाकत जो है वो कभी जज्बाती होता है, कभी इसकी जज्बाती, और ज़ीशान का बड़ा कैलकुलेटेड होना, मज़र का मज़र होना। ताहिर खामोशी से कुछ कहता रहता है, ज़ाहिर नहीं करता, सुनता नहीं है। हाँ, वासिफ साहब मेरे ख्याल में हम
सब में आखिर में आए हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा, लेकिन जितनी अपनाइयत जितना इनके साथ भी रहा, फिर मिसेस बाबर हैं, हफ्सा है, रहमान बाजवा साहब हैं, राना नदीम साहब हैं, शहजाद है, वाहिद है, हाफिज साहब है, इरफान यहाँ मौजूद नहीं है। तो जीशान की ये बात ज़रा एक कर्टियस थी कि मैंने कभी किसी को सख्त बात नहीं की। हाफिज साहब से पूछें। हाफिज साहब ने कहा है कभी कभी डांट भी दी है, साहब को भी डांटा है, हाफिज साहब को भी डांटा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी इसलिए कि अपनी ज़ात के हवाले से कभी नहीं, शोबे के हवाले से, क्योंकि मैं ये समझती थी कि ये जो वक्त था चंद साल पहले का, वो पे बैक का था। तो मैं बस शोबे के किसी काम के हवाले से थोड़े से कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी, वरना आप सब ये मेरी फैमिली हैं और उतने ही मेरे लिए अहम हैं जितनी मेरी फैमिली और सारी ज़िंदगी रही। बहुत अब काफ़ी का टाइम हुआ था जी, काफ़ी हो गया ये हमारी भाभी डॉक्टर अजरा लियाकत, वो भी आपके लिए नेक ख्वाहिशात। हाँ जी, शाहिद इकबाल कामरान, डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब, बहुत सारे लोगों ने, एहतशाम साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, फैसलाबाद से शब्बीर कादरी साहब फैसलाबाद से, और काफ़ी सारे दोस्त हैं, तो रियाज राही हैं, ये नूर फातिमा जी, रमज़ान गौरी, और मशरक़ी पंजाब से हरबिंदर सिंह सांधा, ये हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब बहुत शुक्रिया तुहाडा जनाब सरदार जी, बहुत मेहरबानी मैडम, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सायरा इरशाद साहब देख रही हैं, सत श्री अकाल। चलें नाजरीन, इसके साथ ही हमारी ये छोटी सी एक नशिस्त थी मैडम के एजाज़ में, तो इख्तिताम हो रहा है उसका। आप सबका बेहद शुक्रिया।